Good morning. Thanks to this reunion meeting of 74 batch of our Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Missouri. This meeting this month, beginning yesterday, I was in the audience of famous author and senior diplomat Rajiv Dogra, The Autocrats. I narrowly missed the chat because of some memory lapse. I thought it's at 7 p.m. and it had actually started at 6 p.m. Fortunately, the web meeting spilled over and I had a chance to have a glimpse of what had gone on before I joined. Focus was, during the chat period, I was on Pakistan and Kashmir, Pahalgam. My purpose of this chat is to look back at my Kashmir visits and my Pakistan visit. I mentioned about the 2 weeks or so visit to Pakistan in 99, post-Kargil war. That was a period when we never ever thought we would be visiting Pakistan, and for the first ever visit and maybe the last. It happened such that International Geological Correlation Program, IGCP Project 421, was convened by Peshawar University and Professor John Talent, late Professor John Talent of Macquarie University, Australia. John was a friend, and we told him in great excitement when our great Atal Bihari Vajpayee ji went in that famous bus yatra to Lahore, that now we can travel to that meeting in a bus. No need. We don't have to worry about the travel expenses, etc., etc. पता किया कि साहब 500 रुपया में आप पेशावर पहुंच जाएंगे बस से. But Kargil came and it became obvious that for Indians to travel by road in Pakistan could be hazardous. We were told by John, take a flight. Taking the flight was also quite an exercise. Getting the visa was not that easy under those circumstances. Contacting Peshawar University was almost impossible. Wherever we went, to make a call to our friends in Peshawar University, we were told no. This is risky for a STD operator and I'll have to answer a lot. I told him I'm a teacher and a geologist. We're going for a UNESCO meet of some 30 or 31 countries. It's a field meeting, scientific meeting. He said, so ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਬਟ ਕਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੇ ਤੁਸੀਂ, ਆਪਾਂ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ पोस्ट ऑफिस. हार के मैंने अपने मित्र जॉन टैलेंट को इन्फॉर्म किया और कुछ फ्रेंड्स ने ईमेल के माध्यम से हमारा कांटेक्ट बिठा दिया with Qasim Jan in Peshawar, the famous Qasim Jan, who wrote a book with Qureshi on geology of Pakistan, that हमें दिक्कत हो रही है. एक दिन पहले हमारी विजिट से, फ्लाइट से, हमें एक मेल आई कि कल आप जाइए एंड वो पाकिस्तान की एम्बेसी पहुंचिए. एम्बेसी, हाई कमीशन, जो भी उसको आजकल शायद हाई कमीशन नहीं कहते, बिकॉज वो कॉमनवेल्थ वाला जो था शायद ख़त्म हो गया. तो हम पहुंचे और गलती से हम वो पब्लिक वाली लाइन में खड़े हो गए जहाँ पे ढेर सारे लोग जो अपनी एक नॉर्मल विजिट के लिए वीज़ा के लिए खड़े थे.
जो फर्स्ट सेक्रेटरी था पाकिस्तान की एम्बेसी में, हु वाज वेटिंग फॉर अस, मैं अस कह रहा हूँ बिकॉज मेरे साथ मेरे गुरुजी डॉक्टर ओम भार्गव, जो मेरे पीएचडी गाइड थे और जैसे में कलीग थे, मैंने किसी तरह से उनको परसुएट कर लिया था कि आप साथ चलो। वो थोड़े हेसिटेंट थे, बीइंग ए सीनियर, बीइंग एन एल्डर, कि ये वक्त नहीं है पाकिस्तान जाने का। और जैसे तैसे हमें वीज़ा मिल गया था, और फिर फ़्लाइट का पता लगा कि वो भी हमारी कुछ गड़बड़ हो गई है। जैसे तैसे हमारी फ़्लाइट भी बुक हो गई। क्रेडिट कार्ड का 99 की बात है, इतना चलन नहीं था, हमारे पास एक था। जैसे तैसे हमने अपनी बुकिंग कर ली और जैसे तैसे हम फ्लाइट में चढ़ गए। और वहाँ पहली बार देखा कि सामान आपका दोबारा से खुलेगा। हवाई जहाज पाकिस्तान एयरलाइंस के नीचे दोबारा से आपका सामान खुला, आपकी दोबारा से चेकिंग हुई। हमें कोई तकलीफ नहीं है साहब चेकिंग से, हम कहते भैया 10 बार चेकिंग कर लो पर हमें ठीक ठाक से पहुंचा देना। लाहौर पहुंचे। अब लाहौर के बाद में हमें इंटरनेशनल से निकल के नेशनल में जाना था। वो जो पीरियड था एक बड़ा थोड़ा सा रिस्की था हमारे लिए। जब तक हम पेशावर की फ़्लाइट में नहीं चढ़ गए, हमें ये रहा कि अब अगर हमें कोई पूछ ले भैया तुम यहाँ पे कैसे हो लाहौर में, तो दिक्कत होगी। पर भगवान की दया, इंशाल्लाह हम पेशावर पहुँच गए। रात के 10:30 के करीब रब्बी अली खान, हमारे जो एसोसिएट प्रोफेसर थे वहाँ, वो हमें लेने आए पेशावर एयरपोर्ट पे। कोई टाटा सुमो टाइप की गाड़ी थी, जिसमें वो, उनके यहाँ उसको टाटा सुमो नहीं कहते होंगे, जो भी थी, वो हमें ले गए पेशावर यूनिवर्सिटी। और क्या ग्रैंडियोस यूनिवर्सिटी कैंपस था। 5-6 रंग की हरी मिर्ची लगी थी, बड़े बड़े फूल लगे थे, बड़े बड़े बरांडे थे, बड़े बड़े कॉरिडोर्स थे, कमाल था। और जो पुराने ज़माने की एक बड़ी आर्किटेक्चर थी। और एक लेक्चरर भी पेशावर यूनिवर्सिटी में, जिस कमरे में मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में रहा पूरी ज़िंदगी, एक सिंगल बेडरूम में, वो उससे 4 गुना बड़े कमरे में बैठा था चौड़े होके। तो एक था बड़ा, पर वो पेशावर की गलियों में वही ठेले पे मक्की बिक रही थी। और हमारे जो रुपए थे, हिंदुस्तानी रुपए, वो पाकिस्तान और नेपाल ही ऐसे देश थे उस वक्त जहाँ जाने से उनकी संख्या बढ़ जाती थी। तो हमने 8 आना का एक वो लिया, भुनी हुई मक्की का, और देखा आसपास में क्या हो रहा है। काफ़ी मज़ेदार था पेशावर पहुंचना। तो वो जो गेस्ट हाउस था पेशावर यूनिवर्सिटी का, उसमें जो इवन जो चौकीदार था, पूर अपनी वो बड़ी सेरेमोनियल पगड़ी में और लंबे कुर्ते सलवार में रहता था। बड़े एक, या शायद उसको खास तैयार किया गया था कि भाई इंटरनेशनल गेस्ट आ रहे हैं पेशावर यूनिवर्सिटी में, तो थोड़ा सेरेमोनियली रहना। उसने भी साहब हमें कहा कि साहब हिंदुस्तान से आए हैं साहब, आप तो हमारे भाई लोग हैं। हमें बड़ा अच्छा लगा कि हम तो बड़े डरते डरते आ रहे थे पाकिस्तान, यहाँ तो ये तो हमारे। फिर एकदम से मुझे याद आया, हाँ वो तो अब्दुल गफ़ार खान जी का वो है प्रांत। तो उसने पहली बात हमको चौकीदार ने बोली, साहब आपसे बड़ा गिला है हम लोगों को, ना हमको आज़ाद कराया ना अपने साथ रखा। तो वो हमेशा एक दर्द रहेगा साथ दिल में। आप लोग हमारे दिल के बहुत करीब हो, इसलिए आपसे कह रहे हैं। तो उन दिनों मैं एक प्लान कर रहा था, एक इंटरनेशनल फील्ड मीटिंग। तो मैंने उसको ऐसे ही कहा कि मैं, वो चौकीदार भी मुझे बोला कि एक इनवाइट साहब मेरे को भी दे देना। मैं सोचूं जियोलॉजिकल मीटिंग का मैं इसको भाई को कैसे इनवाइट दे दूंगा, पर जैसे बातचीत, मैंने कहा हाँ हाँ आप आइएगा, मेरे मेहमान बनिएगा। अगले दिन देखा कि वो जो मीटिंग थी पेशावर यूनिवर्सिटी में, उस सामने उस हॉल में बड़ा भारी एक तस्वीर लगी थी, कायद आज़म जिन्ना, और नेशनल एंथम हुआ, और जॉन ने बात की, कासिम जान ने बात की, और
हम लोगों को कुरैशी साहब मिले, जो लखनऊ से पाकिस्तान गए थे और पाकिस्तान जियोलॉजिकल सर्वे के डायरेक्टर जनरल रिटायर हुए थे, पेशावर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रिटायर हुए थे। वहाँ उनको पता लगा कि हिंदुस्तान के दो लोग आ रखे हैं। उस मीटिंग में पेशावर की इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कोalition प्रोग्राम की, आप यकीन मानिए अगर कोई वीआईपी था तो डॉक्टर ओम नारायण भार्गव और अरुणदीप आहलूवालिया थे। नॉर्मली हमारे देशों में जब ये जो गोरे आते हैं, फिरंगी आते हैं, तो उनकी ज़्यादा इज्जत होती है, अपनी हम लोगों की, हमारे ब्राउन रंग वालों की ज़्यादा इज्जत नहीं होती। वो सभी कह रहे थे भैया बड़ा कमाल किया हिंदुस्तान वालों ने। करगिल के वॉर के तुरंत बाद, सितंबर का महीना था, करगिल शायद अप्रैल में ख़त्म हुआ था, आए तो उस मीटिंग की चाय भी साहब क्या गजब चाय थी। चाय पे तंदूरी मुर्गा मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं देखा था, और क्या क्या पकवान थे चाय पे। वहाँ कुरैशी साहब हमारे पास आए और उन्होंने कहा भार्गव साहब को, भार्गव साहब ने बताया कि मैं लखनऊ से पढ़ा हूँ, और परिचय हुआ। ही सेड वो गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस जी की वो जो उस झगड़े में मेरे वालिदैन मुस्लिम लीग में आ गए और हम यहाँ आ गए, और पूरी ज़िंदगी मुहाजिर बोलते थे शायद उनको, वो मुझे बोलना नहीं आता, सेकंड रेट सिटीजन बन के रहे। खरे खासे लखनऊ में बसे हुए थे। आज भी लखनऊ की एक चीज़ सी हमारे दिल में आती है। और बोले, जो वो बोले मैं हैरान हो गया सुन के, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की गोद में पला था मैं, खेला था मैं, और उसने जो शब्द अपनी पूरी कम्युनिटी के लिए इस्तेमाल किए, वो मुझे बड़ा थोड़ा अजीब लगा कि इतने साल के बाद में भी ये आदमी लखनऊ से अपने आप को जोड़ रहा है, पेशावर से ना पाकिस्तान से नहीं जोड़ रहा है। शायद यही कहानी है हिंदुस्तान पाकिस्तान की। जो उधर से आया उसको लाहौर याद आया, या मियाँ वाली याद आई, या सियालकोट याद आया, या कराची याद आई। जो इधर से गया उसको ये याद आया। और आज आज कहाँ आ गए हम फिर दोबारा से। 2025 में पहलगाम के उस छोटे से मेडो में, जिसको हमारे भाई बहन मिनी स्विट्ज़रलैंड कह रहे थे और खुशी से जा रहे थे, वहाँ खून खराबा हो गया। और कल भी राजीव डोगरा की जो बुक थी द ऑटोक्रेट्स, उसमें टोटल फोकस आई एम श्योर पाकिस्तान पे तो नहीं रहा होगा। ऑफ कोर्स उन बिकॉज एक डिप्लोमेट हैं, वो भी 74 बैच के, तो हर चीज़ पे फोकस रहा होगा। और उस बैच के बड़े बड़े पहुँचे हुए लोग हैं। हरदीप सिंह पुरी उसी बैच के हैं, और क्या रुतबा है हरदीप का। तो उनको देख के मुझे एकदम से ध्यान आया, राजीव डोगरा, ये शायद मैंने इस हम आपस में एक सभी को, एक दूसरे को, हमें ये समझ नहीं लग रहा कि हम लोग 73 74 75 के हो गए हैं। अब 74 वाली वो जिंदगी नहीं है, पर हमने इस मसूरी रीयूनियन के बाद में अपने आप को टोटली उस 74 की उस जिंदगी में ढाल लिया। और अभी भी इतने दिन से मसूरी से आने के बाद, रीयूनियन से आने के बाद, वो मेरे दिमाग से निकली नहीं है। मैं बार बार मसूरी की रीयूनियन की बात कर रहा हूँ बिकॉज कल की मेरी जो इंटरेक्शन और मेरा दोबारा से इन सबको रीडिस्कवर करना और इस यूनियन में शामिल होना, और एक इनवाइट मुझे मिलना इंटरेक्शन के लिए जून में, मैं देखता हूँ वो कैसे होगा, बिकॉज मुझे ट्रैवल करना है। और 27 जून को शायद मैं
बाहर होऊंगा, पर मैं विदेश से भी अपनी इंटरेक्शन करता हूँ, करता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरा भी अगेन एक सब कॉन्टिनेंटल जियोलॉजिकल disaster management and geotourism, ecotourism, a common shared development of Indian subcontinent, उस पर फोकस रहता है और तब भी रहेगा। मरते दम तक मैं कहूँगा ये टेररिस्ट, ये दो दो कौड़ी के कमीने जितने मर्जी आलें झालें, अल्टीमेटली इंडियन सब कॉन्टिनेंट के और हिमालयन इकोलॉजी शेयरिंग नेशंस के सभी लोगों का भविष्य, their future lies together. They are gifted with the most beautiful landscape of the world. Nobody shares the mighty Himalayas. The European countries have the Alps, the Juras, and whatever. And how wisely they use that. I'll come back to my Pakistan visit and my Kashmir visits. अगले दिन पता लगा साहब के अब फील्ड मीटिंग है पेशावर यूनिवर्सिटी। हमें पेशावर का ही वीज़ा मिला हुआ था। हम फील्ड मीटिंग के लिए गए थे, पर वीज़ा नहीं था हमारे पास। कासिम जान कहते हैं कि साहब हमारी जुगाड़ है, हम आपको वीज़ा दिला देंगे, कोई चिंता की बात नहीं। भार्गव साहब तो दाढ़ी रखते हैं, तो बोले कि साहब इनका तो पता ही नहीं लग रहा कि ये बिल्कुल कोई पाकिस्तानी नहीं है, ये तो पाकिस्तानी ही लग रहे हैं, चलेगा, कोई पूछता नहीं है। और आलू वाले साहब कोई आप में हमें क्या फ़र्क लग रहा है, आप इस पासपोर्ट को छोड़ दीजिए, चिंता न करिए वीज़ा की। भार्गव साहब ने बोला कि ये नहीं होगा, या तो हमें वीज़ा मिलेगा या हम वापस जाएंगे, हम किसी लीगल उलझन में नहीं पड़ना चाहते। तो मैंने उसको, रब्बी अली ख़ान और जो भी लोग थे वो हमारे साथ बहुत, उनका दोस्ताना हो चुका था वो, एक ही दिन में, 2 दिन में, और तीसरा दिन था शायद, क्योंकि उस दिन पहले दिन तो ऐसे ही घूमना फिरना था। काबुल रिवर है वहाँ पे, कासिम जान हमें लेके गए, उन्होंने फ्राइड में फ़िश जो थी हमें खिलाई, और एक मेमोरियल दिखाया काबुल में, जहाँ 150 करीब लोग पार्टीशन के खिलाफ लड़ते हुए मर गए थे, उनका मेमोरियल था वहाँ। वो बार बार इंडिया पाकिस्तान नहीं बोल रहे थे, वो बार बार कहते थे मुल्क की जो तकसीम थी उसके खिलाफ खून बहा था हम लोगों का। कितना बड़ा जज्बा है। हम लोग यहाँ बैठ के ये सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि मेरी माँ लाहौर की थी और मैंने भी बचपन से खून खराबे के किस्से सुने थे, और उनके साथ बैठ के गोविंद निहलनी का जो ये अपने भीषम साहनी का जो नावल है उस पर जो तमस सीरियल था, वो बैठ के उस वक्त मैंने अपनी माँ के साथ जो लाहौर से थी देखा था। बड़े इमोशंस के साथ हम दोनों ने, माँ बेटे ने, वो देखा था। और बाद में भी वीसीआर पे वो VHS कैसेट कहीं से पकड़ के फिर दोबारा तिबारा देखा था। तो एक जज्बात हमारा भी था, और एक जज्बात पेशावर में जो देखा, वो लगा ही नहीं कि मैं हिंदुस्तान से बाहर आया हूँ। जो लगाव पेशावर यूनिवर्सिटी का और सारे जियोलॉजिस्ट का, वैसे ही जियोलॉजिस्ट जो होते हैं ना, कहीं पे भी हों, वो एक दूसरे के चचेरे भाई होते हैं। तो और ख़ास तौर पे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जियोलॉजिस्ट, वो तो एक लड़का था तलत, हु वाज अ पैलेंटोलॉजिस्ट, उसकी माँ लाहौर में वो पढ़ाता था, लाहौर यूनिवर्सिटी में, उसकी माँ अम्बाला की थी। डायरेक्टर जनरल जो पाकिस्तान जियोलॉजिकल सर्वे के थे, उनकी माँ जलंधर की थी। तो ऐसे, और वो कुरैशी साहब वो लखनऊ के थे। और ये सारी कहानी, अभी मैं फील्ड मीटिंग की बात थोड़ा बाद में करता हूँ। जब मैं लौट के आया चंडीगढ़, तो हमारे वाइस चांसलर साहब थे MM पुरी, जो मिसेस इंद्र कुमार गुजराल के क्लासमेट थे। और
Indra Kumar Gujaral, after he was no more a prime minister, came to our university, perhaps in the convocation. And पुरी साहब एक जियोपॉलिटिकल साइंटिस्ट थे. उन्होंने इस बात को बहुत हाईलाइट किया कि हमारे एक टीचर अभी पेशावर जाके आए. तो उस पूरी यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी की गैदरिंग में शाम को सभी लोग देख रहे हैं कि गुजराल साहब के साथ मेरी मुलाकात करवाई जा रही है. और तब मैं एसोसिएट प्रोफेसर ही था. और पुरी साहब का एक स्टाइल था. वो गुजराल साहब को कह रहे हैं, प्रोफेसर अरुण आलूवालिया हैज़ बीन टू पेशावर यूनिवर्सिटी. एंड then he said, Professor Arun Ahluwalia, the Prime Minister would like to ask you about your experience in Pakistan. I remember Indra Kumar Gujaral had a great mindset. In fact, all Indian politicians have a great mindset. That is why we had given this special nation treatment to Pakistan for all the trade, even till now, जो अभी हटा है. Indus Valley, Indus waters and trade and what not. ये एक लकीर जो लगी है नक्शे पे, हम जियोलॉजिस्टों को के लिए तो उसकी कोई अहमियत ही नहीं है. बिकॉज पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो इतिहास है वो जुड़ा है. हमने जब पढ़ा है, हमारी एक किताब थी MS कृष्णन की, जियोलॉजी ऑफ इंडिया एंड बर्मा. हम लोग बर्मा को भी अभी कभी अलग नहीं किया है. वो वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, दैट वाज ऑल हम्बग फॉर अस. हमने पूरा का पूरा सॉल्ट रेंज की पढ़ाई करना एज अ स्टूडेंट, एंड सॉल्ट रेंज में फील्ड विजिट के लिए जाना एज ए जियोलॉजिस्ट ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी. मैं जियोलॉजिकल सर्वे छोड़ दिया था 1982 में. इट वाज अ ग्रेट फीलिंग. एंड वो सॉल्ट रेंज के बाहर में जो ढाबे थे, वो लोग इतने इस बात से वाकिफ़ थे कि ये एक जियोलॉजी का मक्का मदीना है. यहाँ पे दुनिया भर के जियोलॉजिस्ट आते हैं और वो सेक्शन सॉल्ट रेंज का देखते हैं. और उनका स्टैंडर्ड था वो, जो जैसे हमारे पंजाब में होता है, वो खाट लगी है, खाट में बीच में एक लक्कड़ पड़ी है जो एज ए सॉर्ट ऑफ डाइनिंग टेबल इस्तेमाल हो रही है, और आपको उस खाट पे चौंकड़ी मार के बैठना है, और एक बड़ी पीतल की थाली आ रही है, उसमें एक बड़ा डोंगा जिसको बाटी बोलते हैं पंजाब में, उसमें रोगन जोश है. और जो मेरे को तो वो लगा, चलो यहाँ पे देखूँ पाकिस्तान का रोगन जोश सॉल्ट रेंज वाले ढाबे का. एक तंदूरी रोटी जो थाली के जितनी थी, मेरे लिए खानी मुश्किल हो गई. सो वो एक बहुत सारी बातें हैं जो मैं कह ही नहीं पाऊँगा. आई कम बैक टू द वीज़ा पार्ट. जो रात को 2:30 या 3 बजे हमारा दरवाज़ा खड़काया गया होटल का, और वो जो प्रोफेसर थे मेरे पास आए, बोले कि बुजुर्गवार सो रहे हैं, भार्गव साहब का नाम लेके. कहाँ वो सो रहे हैं, आप ऐसा कीजिए, वीज़ा लग गया है और उनका पासपोर्ट उनके तकिए के नीचे रख दीजिए. मेरे जो कह रहे हैं, नहीं तो मुझे बहुत डांट पड़ने वाली थी. गुरु तो गुरु होता है, आज भी गुरु हैं वो, तब भी गुरु थे. और घूम के मैं वापस आऊँ, मेरी पहली कश्मीर विजिट भार्गव साहब के कारण थी. वो पहली पाकिस्तान की विजिट मैंने भार्गव साहब को किसी तरह से ज़बरदस्ती करवाई थी, और हमारी दोनों की पहली विजिट थी पाकिस्तान की. तो सवेरे मैंने भार्गव साहब को बताया कि आ गया वीज़ा, पासपोर्ट आपका तकिए के नीचे है. तो वो पाकिस्तान का वीज़ा
हमारे जिस पासपोर्ट पे लगा हुआ था वो भी हमारे लिए थोड़ी सी कई बार एक प्रॉब्लम क्रिएट करता था ड्यू टू मैनी रीजंस. मैं आई वुड नॉट लाइक टू नेम दम बिकॉज मैं आज पाकिस्तान की विजिट को रिकॉल कर रहा हूँ और अपनी कश्मीर की विजिट को रिकॉल कर रहा हूँ एक बहुत ही ह्यूमन इमोशनल सेंटिमेंट के साथ एज अ जियोलॉजिस्ट and as a son of a lady from Lahore, and as a friend of my Pakistani geological colleagues, whom I hold in great respect. In fact, Geological Survey of Pakistan and the Pakistani geologists had the benefit of being very open because we were non-aligned. हमारा जो कोलैबोरेशंस थे वो इतने खुले नहीं थे. Canadian geologists, the British geologists, the American geologists, the Japanese geologists, and of course Chinese geologists, German geologists, they were all very actively, intensively collaborating with Pakistan geologists. वो फ्रीडम जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जियोलॉजिस्ट को नहीं थी. और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, दो it will ever be, it has had its 175th year of establishment. 4th मार्च को उसमें हम गए थे. इट हैड ए सॉर्ट ऑफ ए बड़ा एक घिसा पिटा सा स्टाइल चल रहा था जिसमें पाकिस्तान की मैंने रिपोर्ट देखी, जियोलॉजिकल मैप और उसके नीचे उसका पूरा एक समरी ऑफ द फील्ड वर्क. वो 6 महीने में छप जा रही थी. अब हिंदुस्तान में जियोलॉजिकल सर्वे में वो सब कुछ होने लगा है, बट पाकिस्तान में वो 26-27 साल पहले जो मैंने देखा था वो कहते कि ये हमारा स्टैंडर्ड है. और जो जियोलॉजिकल मैप्स थे और जो जियोलॉजिकल फील्ड वर्क था, क्योंकि उस वक्त बहुत खुला था, तो उसमें बहुत हाई स्टैंडर्ड की रिसर्च अक्रॉस पाकिस्तान जियोलॉजिकल स्पेक्ट्रम हो रखी थी और पाकिस्तान को बड़ा ज़बरदस्त एडवांटेज था उस कोलैबोरेशन का, इंटरनेशनल एक्टिव कोलैबोरेशन का. आप समझ सकते हैं इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कोरिलेशन प्रोग्राम प्रोजेक्ट 421 का फील्ड मीटिंग पेशावर में, थैंक्स टू इट दैट वी हैड द चांस, थैंक्स टू वाजपेयी जी, कि हमें लगा कि हम तो बस में चले जाएंगे. हमने कहा हम तो जाएंगे, और बाद में उसी चक्कर में धक्के में हम चले गए. अगले दिन जो फील्ड मीटिंग हुई, बड़ी अजब की फील्ड मीटिंग थी वो. देयर वर सम 31 or 32 जियोलॉजिस्ट फ्रॉम अक्रॉस, शायद थोड़े से ज़्यादा थे, फ्रॉम अक्रॉस 30 कंट्रीज और सो. जियोलॉजिस्ट ज़्यादा थे, उतने नहीं थे. बट देयर वर सम 200 कमांडोज. आई नेवर डन अ फील्ड वर्क विद सो मेनी कमांडोज. और वो इतनी सारी बंदूकें लेके हमारे साथ चले हुए. मैंने ऐसे पूछा, भैया क्या चक्कर है? तो बोले रशियंस एंड इंडियंस आर स्पेशल फोकस ऑफ द तालिबान. तब तालिबान वो पेशावर के आसपास में कुछ वो बंदूकें बिकती थी, पर ऐसा इतना चौड़ा नहीं हुआ था जितना बाद में हुआ. तो आप लोगों के लिए प्रोटेक्शन के लिए ही है. थोड़ा सा एक बार हम फेल्ट इनसिक्योर, बट अच्छा लगा कि वी आर सेफ. एंड हम लोगों ने बस में यात्रा की, उनकी गाड़ियों में यात्रा की, हम पैदल चले, खैबर पास पे गए, उनके ट्राइबल बेल्ट्स में गए, और इस्लामाबाद में गए, और वो फैज़ल मॉस्क के बाहर में बस खड़ी थी. हम मारे डर के बस में ही बैठे रहे. बड़ी इच्छा थी कि देख लें अंदर जाके क्या ज़बरदस्त बिल्डिंग है, क्या ज़बरदस्त आर्किटेक्चर है. मारे डर के उस माहौल में, एक तो हम कभी अपनी ज़िंदगी में मस्जिद में नहीं गए थे. पासपोर्ट तो हमने जेब में ही रखा हुआ था हमेशा, पर हमें ये रहता था कि कहीं पूछताछ हो जाएगी और कोई हमें गलत समझ लेगा तो हम मुसीबत में.
इस्लामाबाद की कुछ दुकानों में हमने शॉपिंग करी और वी वर ऑल वेरी कंफर्टेबल। खाना पाकिस्तान का इतना लैविश था उस मीटिंग में कि हमसे तो खाया ना गया। ढेर सारा मीट, मीट ही मीट, और सब्जी का नामो निशान नहीं। भार्गव साहब वेजिटेरियन थे, तो जैसे तैसे फिरनी और कुछ फल और सलाद में जोड़ जुगाड़ करके, जो टिपिकल पाकिस्तान की दाल होती है, उड़द की खुश्क दाल प्याज के तड़के वाली, और रोटी का मैं जुगाड़ करता। एक दिन मैंने उनको कहा, देखिए भार्गव साहब थक गए हैं आपका ये मीट खा खा के, तो आप प्लीज़ कुछ वेजिटेरियन मील्स का जुगाड़ करिए। ये मेरा भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एक सुवेनियर मग है, जो फाउंडर्स डे पे मुझे चंडीगढ़ के जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ऑफिस, जहाँ का मैं एलुमनस हूँ, उन्होंने मुझे दिया था। ये है जियोलॉजी की एक ज़िंदगी, एक जियोलॉजिस्ट के सेंटिमेंट्स और जियोलॉजिस्ट का इमोशन। ये सब कुछ बड़ी रैंडम तरीके से मैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए आज सुबह सुबह उठा, क्योंकि कल राजीव डोगरा की बातचीत और सभी मित्रों की बातचीत ने मेरे को मेरे पाकिस्तान और कश्मीर के जो विजिट्स के जज्बात थे वो जगा दिए, और मैं रात भर सोया, पर उन्हीं ख्वाबों के साथ सोया। जो जियोलॉजी की विजिट थी पेशावर की खैबर पास से लेके मियाँ वाली तक, और जो बस में बैठे हुए बातचीत होती थी, वो बिल्कुल ऐसी थी जैसे अपने हिंदुस्तान में होती है। वो मियाँ शरीफ थे तब वहाँ पे, और हमारे वहाँ से वहाँ पे चीनी काफ़ी जा रही थी, तो वो लोग जैसे हम लोग अपने पॉलिटिशियंस का मजाक उड़ा लेते हैं, वो भी दबा के उड़ा रहे थे। और जो वो बोले, मैं यहाँ पे नहीं बोलना चाहूँगा, पर वो बोले कि साहब ये जो आपने इसको चीनी दी है, ये चीनी पे हम यहाँ बहुत पैसा कमा रहा। फिर कोई बोला कि ये जो आपकी मारुति कार है, हम जापान से खरीदते हैं, सुजुकी बोलते हैं वो इसको, और हमें 2.5 या 3 गुना पड़ती है। फिर वहाँ पे मिनरल्स की ट्रेड वाले कोई आए, वो बोले रुक जाओ आप लोग, हफ्ता 2 हफ्ता, हम आपका वीज़ा एक्सटेंड करवा देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप देख के जाइए कॉमर्स क्या है यहाँ पे मिनरल्स का, बड़ा ज़बरदस्त कॉमर्स है, ओनिक्स का बहुत ज़बरदस्त है, और हमारा आपका जुड़ाव है। जिस दिन हम लोग एक दूसरे के साथ मिलके कॉमर्स का बेनिफिट लेंगे, साइंटिफिक कोलैबोरेशन का बेनिफिट लेंगे, लोग खुल के हमें प्राइवेटली बोल रहे थे उस दिन। यकीन मानिए, ये जो हमारे लीडरान हैं कहते, जो सवेरे शाम दुश्मनी के राग गाते हैं, इनको पब्लिक जूते मार के भगा दे। they were talking like that very openly। बीच बीच में बोलते हैं, एक बात है, वो कश्मीर का पंगा है। हमने कहा ऐसा कोई पंगा नहीं है, वो हमें चाहिए। मैं कहा हमें भी वो तुम्हारे वाला चाहिए जो तुमने मार लिया हमारा, तो क्या आप ले सकते हैं? मैंने कहा उसको छोड़ यार, तू ये बता, तू हमारे वाला ले सकता है? कि नहीं नहीं वो होगा नहीं। मैं कहा फिर भैया जहाँ टिके हो टिके रहो, जो मिल गया शुक्र मनाओ। तो वो कहते नहीं नहीं, हम तो मजाक कर रहे थे, हमारे लिए पॉलिटिक्स कोई मायने नहीं रखती, हमारे लिए ये बहुत बात है
कि जलंधर के हम थे, हमारी माँ थी, अम्बाला की हमारी माँ थी, आपकी माँ लाहौर की थी, और हम इकट्ठे चल रहे हैं, जियोलॉजी की बातचीत कर रहे हैं, इकट्ठे खा पी रहे हैं, और इकट्ठे गपशप लगा रहे हैं, इकट्ठे। आपने जैसे वो पेशावर के ठेले से वो सफ़ेद वाली मक्की मैंने यहाँ देखी नहीं थी, भुनी हुई मिलती थी, जैसे आपने खरीदी, और जैसे वो अखबार के लिफाफे से आप उसको खा रहे थे। मैं मुझे बिल्कुल लगा ही नहीं कि मैं कहीं विदेश में आ रखा हूँ। हिंदुस्तान पाकिस्तान में वो फीलिंग नहीं आती, पर दिल में बड़ी कसक सी होती है, एक दर्द होता है कि बार बार खून खराबा क्यों होता है। कश्मीर जहाँ पे ये हुआ है, अभी 1980 में मेरे को अपना पीएचडी थीसिस जमा करना था। मैं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में था, और मैं यहाँ से बस लेके सीधे श्रीनगर गया। वहाँ से आई टुक ए कैब, आई वेंट टू पहलगाम के पास में ऐशमुकाम, जहाँ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का ट्रेनिंग कैंप था। और उस लोकेलिटी में बाद में ये ऐशमुकाम में जहाँ ट्रेनिंग कैंप होता था वो बंद हो गया, और वहाँ पे उग्रवादी आ गए। अभी जो जब से ये शुरू हुआ कि 2-2 करोड़ टूरिस्ट जाने लगे कश्मीर, 2 साल पहले मेरी बहन गई, बड़ी बहन, तो तब मैं बड़ा हैरान हुआ कि इसने, आई सेड व्हाई डिड शी टेक अ रिस्क। मैंने बोला कि तुमने क्यों पंगा ले लिया काम काम में, सीधे क्या बात करते हो, मैं पहलगाम गई, और ऑफ कोर्स शी हैड प्रॉब्लम, लाइक मी शी हैज आर्टिफिशियल नीज, बट कश्मीर तो जाना चाहिए। मैंने कहा कश्मीर तो जाना चाहिए। मैं भी कश्मीर स्टूडेंट्स का टूर लेके गया था 65 में डॉक्टर कुलशेष के साथ, और बाद में जम्मू और ये पूरा जो टनल का एरिया है वहाँ पे हमने कितनी बार फील्ड वर्क्स की हैं लैंडस्लाइड के लिए, डॉक्टर जीएम भट्ट के साथ। एंड इवन जब ये बालाकोट हुआ है, पुलवामा के बाद में, उस वक्त मुझे एक इनवाइट आया था जम्मू यूनिवर्सिटी से, क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू से, टू गिव ए टॉक। भट्ट साहब ने मुझे रात को फ़ोन किया कि अहलुवालिया साहब एक पॉपुलर टॉक जियोलॉजी की चाहिए, और इट्स अ बेसिक साइंसेज वर्कशॉप। आई टोल्ड द वाइस चांसलर दैट आई लाइक टू इनवाइट यू। एक दिन पहले जम्मू में बस स्टैंड पे एक ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ था। मेरे परिवार से, फैमिली से बहुत रेजिस्टेंस थी कि नहीं आप नहीं जाएंगे। मुझे फिर कॉल आई कि वो ब्लास्ट को छोड़ दीजिए, कुछ नहीं है, सिचुएशन इज़ नॉर्मल, आप आइए। आई परसुएडेड माई फैमिली कि प्लीज़ मुझे जाना है, वो सब कुछ ठीक है। आई टुक अ फ्लाइट फ्रॉम दिल्ली एंड आई वेंट टू जम्मू। आई टॉक्ड इन दैट कन्वेंशन हॉल ऑफ क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू, और जम्मू का है वो कन्वेंशन हॉल, एंड आई टॉक टू द ऑडियंस that I come to say that there is a great need for shared geo and ecotourism, shared geological exploration, shared disaster management, and open borders between all our countries in the Himalayan ecology sharing nations. The day it happens, this area would be better than Europe because it's higher than Europe. It is more exciting than Europe. It has got the grandeur of the loftiest mountains of the world. एक वो बात थी, एक ये बात है कि टूरिस्ट हैं, अच्छे खासे गोली मार दिए गए।
We got to get out of it. ये नहीं चल सकता. The people of the subcontinent, they have their hearts together even today. They will always be together. I've also been to Nepal. Only मेरा license दिखा के I could enter. No passport. I've not been to Bangladesh or Bhutan, but I'm sure geological discussions of the Indian subcontinent, even the thumbnail of this talk I'll be putting on YouTube, will be Indian subcontinent. Geological map of the Indian subcontinent. Those boundaries drawn by those stupid people who came here as traders, those boundaries drawn by selfish politicians are fake and fraudulent. They mean nothing. These killings are very, very painful, but I'm sure these will fade away into the history. Ultimately, humanity will prevail. I was just remembering my visit to Pakistan and Kashmir, especially Pahalgam, Ashmukam, and my travel almost all over Pakistan. I never felt that we are two different countries. Our people cannot kill their people. They cannot kill us. This cannot go on. The landscape is very beautiful across our two countries. We have a great future in harnessing that beauty of our landscape and the great mineral wealth, the great botanical wealth, the great zoological wealth, the great attraction, the great excitement. In fact, I have a talk planned in this group of LBS 74 batch in June, which is on nation building through excitements in our landscapes. We've got to respect this gift of God, Mother Nature, the beauty of the landscape, the beauty of the human relations. That Qureshi is saying after so many years that he misses Lucknow. And he said, these stupid politicians uprooted me, brought me here. God bless you. God bless India. God bless Pakistan. God bless Indian subcontinent. The spirit of geological survey, the spirit of the geologists is same on both sides. The spirit of the natural scientists on both sides is same. The interest in shared exploration, shared disaster management are much bigger, much bigger than any temporary wars and bloodshed. Listening to Rajiv Dogara and listening to him that he's been busy talking on TV channels after this massacre in Pahalgam. The landscape along Lidar River, the journey I took in 1980, it's same as we traveled from Kullu to Manali. Bias and Lidar looked like to me. Peshawar
and Lucknow looks alike to me. They're same people. They eat similar food. They're similar culture, similar sentiments.